Hello students, today we will do some more results on complex number and today we will also do some questions. So let's start. First definition, that is conjugate of a complex number. Let z is equal to a plus iota b be any complex number. What will be its conjugate? First of all, its notation is this, z bar, or you can say conjugate, z कॉन्जुगेट. ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b. फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस आयोटा 3, this is any complex number. What will be its conjugate? Its conjugate will be 2 plus iota 3 conjugate is equals to 2 minus iota 3. It's very simple. Okay, so now what is the next definition? Modulus of complex number. Z is equal to x plus iota by be any complex number. What will be its modulus? It will be read as Z modulus or Z mod is equal to under root x square plus y square. ठीक है, एग्जाम्पल 2 plus 3 iota. ठीक है, what will be its modulus? That is 2 plus 3 iota is equals to under root 2 square plus 3 square, 4 plus 9 under root 13. That's it. Okay, now what is the next result? Next result is z conjugate is equal to mod z square. Let us prove this. This is very important result. ठीक है, it will be used in many questions. So let z is equal to x plus iota y. ठीक है, z conjugate will be x minus iota y. Take left hand side, z conjugate, that is x plus iota y and x minus iota y. Now this is of the form a plus b, a minus b. So you can apply that formula, a square minus b square. Here what is a? A is x and b is iota y. So x square minus iota square y square. ठीक है, what is the value of iota square? -1. ठीक है, I have told you in previous video. So x square minus -1 y square, minus will be plus and x square plus y square. This will be your left hand side. Now take right hand side. Mod z square. Mod z square means mod z whole square. Now what is the definition of mod z? Under root x square plus y square. This is square, this square and square root got cancelled, and what will be the left? X square plus y square. So z conjugate is equal to mod z square. ठीक है, left hand side is equal to right hand side. So remember this result, that z conjugate is equal to mod z square. ठीक है, now result 2, prove that mod z is equal to 0 if and only if z इज इक्वल टू 0. अब मॉड z कब 0 होएगा? इफ़ एंड ओनली इफ. अब इफ़ एंड ओनली इफ का मीनिंग क्या है? इफ़ एंड ओनली इफ का मीनिंग होता है, पहले हम ये साइड लेके चलेंगे, ठीक है, और ये प्रूफ करेंगे. ठीक है, बस इतना ही नहीं, बाद में ये वाला हम अज्यूम करके चलेंगे और हम ये प्रूफ करेंगे. ओके, सो लेट्स डू. लेट मॉड z इज इक्वल टू 0. ठीक है, वेयर z क्या है? a प्लस आयोटा b. मॉड z 0 होने का मतलब a प्लस आयोटा b का मॉड 0. वट इज़ a प्लस आयोटा b? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब किसी चीज़ का अंडर रूट, और ये है भी क्या? रियल नंबर है. ठीक है, इसका अंडर रूट अगर 0 है तो वो कब हो सकता है? जब वो नंबर खुद ही 0 हो. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब ये वाली चीज़ भी मैंने बताई थी आपको, a स्क्वायर ये क्या है? हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, और b स्क्वायर ये भी क्या है? ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. एज a एंड b आर रियल नंबर्स ना. सो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0. ठीक है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. इवन नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव. ठीक है, सो ये भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, ये भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है. अब मैंने यहाँ से ये कैसे बोल दिया कि a भी 0 और b भी 0. अब देखो, a स्क्वायर भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, b स्क्वायर भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है. इन दोनों को प्लस करके मेरे को आंसर क्या मिल रहा है? 0. अब देखो, a स्क्वायर के पास पॉसिबिलिटी क्या है?
0 1 2 3 एंड सो ऑन। बी स्क्वायर के पास पॉसिबिलिटी क्या है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब सपोज मैंने अगर ले लिया A1 ले लिया, 0 नहीं लेती अगर मैं, A1 ले लिया, B भी 1 ले लिया, दोनों को ऐड करा तो मेरे को क्या मिल रहा है 2, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 ना। अब ऐसे अगर कोई और बड़े नंबर लेते जाओगे तो कभी भी 0 आएगा, कभी भी नहीं आएगा। सो कौन सी पॉसिबिलिटी रहेगी, 0 और 0 मीन्स ए स्क्वायर को भी 0 होना पड़ेगा और बी स्क्वायर को भी 0 ही होना पड़ेगा, तब भी उन दोनों को ऐड करके मेरे को क्या मिलेगा 0, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब ए स्क्वायर यहाँ से मिल गया, ए स्क्वायर भी 0 और बी स्क्वायर भी 0। अब ए स्क्वायर अगर 0 है, किसी नंबर का स्क्वायर 0 है, कौन से नंबर का स्क्वायर 0 होता है, ओनली 0 का, ठीक है, और किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी 0 नहीं होता, ठीक है। सो यहाँ से मेरे को मिला A 0 और B 0। अब देखो फिर Z क्या बच गया, Z इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0 विच इज़ इक्वल टू 0। सो एक साइड आपकी प्रूफ होगी, ठीक है। मॉड Z इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हम मान के चले थे और हमने प्रूफ क्या कर दिया, Z इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम कन्वर्स करेंगे, अब हम क्या करेंगे, Z इज इक्वल टू 0 मान के चलेंगे और प्रूफ क्या करेंगे, मॉड Z इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखो Z इज इक्वल टू 0 मान लिया मैंने, Z क्या था A प्लस आयोटा B, वो मैंने कर दिया इज इक्वल टू 0। अब हमने ये प्रॉपर्टी करी थी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो उसका रियल पार्ट भी 0 होएगा और इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो जाएगा। अब A 0 है, B 0 हो जाएगा, A 0 है तो इट मीन्स उसका स्क्वायर भी 0 होएगा, B स्क्वायर भी 0 होएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो वो भी 0 होएगा, इसका अंडर रूट निकालोगे तो वो भी 0 होएगा। बट ये किसकी डेफिनेशन है, मॉड Z की। सो देखो दोनों पार्ट्स हमने प्रूफ कर दिए। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मीनिंग ये होता है कि पहले एक साइड आप अज्यूम करके चलते हो और दूसरी साइड प्रूफ करते हो, फिर दूसरी साइड अज्यूम करके चलते हो भी हाँ जी ये चीज़ होल्ड कर रही है और हम फर्स्ट वाली साइड प्रूफ करते हैं, ठीक है। ये भी रिजल्ट आपने याद रखना है, ठीक है। अब देखो पावर्स ऑफ आयोटा, आयोटा की पावर्स, आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा माइनस अंडर रूट माइनस वन, अंडर रूट माइनस वन का स्क्वायर है -1, ठीक है। ये कुछ वैल्यूज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे आयोटा स्क्वायर की याद रख लेना -1, फिर आयोटा क्यूब की निकाल सकते हो, क्यूब को कैसे लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास -1 इंटू आयोटा और इधर माइनस आयोटा। फिर आयोटा 4, इसको ब्रेक करके कैसे लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर -1 और दिस इज़ 1। सिमिलरली आयोटा 5, 4 इंटू आयोटा, ये 1 आयोटा एंड सो ऑन। अब देखो आप आयोटा की कोई भी पावर निकाल सकते हो ईजीली, ठीक है, बाय रिमेम्बरिंग जस्ट 2 और 3 वैल्यूज, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज that in general iota n is equal to 1 -1 iota and माइनस आयोटा की आप कितनी मर्जी पावर निकाल दो ना, कितनी मर्जी बड़ी पावर 100, 1000, 2000 जितनी मर्जी बड़ी पावर कर दो, बट इसका जो आंसर है ना वो क्या आएगा, या तो 1 आएगा या -1 आएगा या आयोटा आएगा या माइनस आयोटा, इसके अलावा और कोई भी नंबर कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। मतलब आयोटा की जितनी मर्जी आप हायर पावर करी जाओ, ठीक है, इसके अलावा कभी भी कुछ भी नहीं आएगा, हमेशा 1 -1 आयोटा या माइनस आयोटा में से ही कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। अभी हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये आपको इजीली समझ लग जाएगा, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू दी सम प्रॉब्लम्स। अब देखो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, सिंप्लीफाई 2 आयोटा स्क्वायर 6 आयोटा क्यूब 3 आयोटा 16 -6 आयोटा 19 + 4 आयोटा 25। अब देखो आयोटा स्क्वायर की मेरे को वैल्यू पता है, मैंने इसकी वैल्यू रख दी। आयोटा क्यूब की भी हमने अभी पीछे निकाली माइनस आयोटा। अब देखो आयोटा 16 की तो मेरे को वैल्यू पता नहीं है, वो कैसे निकालूँ मैं। अब देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको आप कैसे ब्रेक करते हो। अब इसको हम ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, है ना, और इसको आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो,
जैसे मर्ज़ी आपकी, जैसे मर्ज़ी ब्रेक कर सकते हो, मेरे को तो बस उसकी वैल्यू चाहिए। अब देखो अगर मैंने ऐसे ब्रेक करा तो मेरा एक ही लाइन में आंसर हो जाएगा। आयोटा 4 की 4, आयोटा 4 की वैल्यू हमने निकाली 1, सो 1 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 1 मिल गया मेरे को, मीन्स आयोटा 16 की वैल्यू 1। अब किसी बच्चे ने अगर ऐसे नहीं करा, उसने ऐसे ब्रेक कर लिया, अब देखो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उसको आयोटा 8 को फिर से ब्रेक करना पड़ेगा। आयोटा 8 को लिख सकते हो आप 4 स्क्वायर, सिमिलरली इधर भी 4 स्क्वायर, तो यहाँ से 1 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर यानी कि 1 मीन्स आंसर जो है घूम फिर के वही आएगा। ब्रेक आप जैसे मर्जी कर लो, तो मीन्स आयोटा 16 की वैल्यू आ गई 1। अब मेरे को नेक्स्ट किसकी वैल्यू चाहिए, आयोटा 19 की। अब इसको देखो कैसे ब्रेक करोगे, 9 2 ज़ा 18, अभी एक पावर रहेगी तो मैंने साथ में लिख दी। आयोटा स्क्वायर -1 की 9 इंटू आयोटा, -1 की 9 -1 आयोटा, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, माइनस आयोटा। तो मीन्स इसकी जगह मैं रख लूँगी माइनस आयोटा। अब मेरे को नेक्स्ट किसकी वैल्यू चाहिए, आयोटा 25 की। ये आप लिख सकते हो 5 की 5, ठीक है। अब आयोटा 5 की वैल्यू मैंने निकाल ली थी आयोटा, फिर से ये आ गया आयोटा 5, ये क्या आ गया आयोटा, तो मीन्स इसकी वैल्यू देखो क्या आ गई आयोटा। अब आपने कुछ नोटिस किया कि वैल्यूज़ देखो क्या आ रही हैं, -1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा आयोटा, मतलब उन्हीं चारों में से कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब सारी वैल्यूज़ मैंने रख दी, अब इसको सॉल्व कर लो। ये क्या आएगा -2 -6 आयोटा, इधर से 3 माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा, और लास्ट पे 4 आयोटा। अब सिंपल वाली टर्म्स एक साइड पे कर लो, -2 + 3 क्या हो जाएगा 1, ये कैंसिल हो गया और आंसर क्या आ गया आपका 1 + 4 आयोटा। इसको हमने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई। क्लियर, ओके। सो नाउ सेकेंड क्वेश्चन। अब देखो इसको कैसे करोगे, क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। फटाफट से कर लेते हैं इसको भी। अब ये देखो ये क्या बन रही है, फॉर्म बन रही है a + b a - b, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा लूँ a² - b², ठीक है। और नीचे तो कोई फॉर्म नहीं बन रही, सिंपल माइनस ही है, तो इसको मैंने माइनस कर दिया। माइनस करोगे तो साइन हो जाएंगे चेंज, ये हो गया कैंसिल, 3 का स्क्वायर इज़ 9 माइनस इसको जब ओपन करोगे ऐसे ही आएगा, और ये देखो √2 आयोटा √2 आयोटा, तो ये क्या हो गया आपका 2 √2 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास है, ठीक है, 2 √2 आयोटा, 9 + 5/2 √2 आयोटा, ये आ जाएगा 14/2 √2 आयोटा। इसकी कटिंग करोगे 7/2 आयोटा। अब देखो ये तो आयोटा आ रहा है नीचे, ठीक है, बट हमारी जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, a + आयोटा b, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। अभी देखो वो वाली फॉर्म नहीं आई, इसको क्या करोगे आप, रैशनलाइज, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे कर देती हूँ, ये आ जाएगा 7/2, ऊपर तो आ जाएगा आयोटा, नीचे आएगा आयोटा स्क्वायर, और उसकी वैल्यू हम रख देंगे -1, तो अल्टीमेटली -7/2 आयोटा। अब आप बोलोगे तो ये तो अभी भी नहीं a + आयोटा b की फॉर्म आई। अब देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, a + आयोटा b, वेयर a is 0 and b is -7/2। सिंपल देखो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, a + आयोटा b, वेयर a and b आर एनी रियल नंबर्स। नाउ 0 इज़ अ रियल नंबर एंड -7/2 इज़ ऑल्सो अ रियल नंबर। सो हमने क्या करा, इसको एक्सप्रेस कर दिया इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b, ठीक है। अब नेक्स्ट 1/3 + 3 आयोटा क्यूब, ठीक है। अब इसका मैं आपको हिंट बता देती हूँ, ये आप ट्राई करना, ठीक है। अब ये देखो ये बन रही है a + b होल क्यूब वाली फॉर्म, तो ये हमें फॉर्मूला पता है, a³ + b³ + 3a² b एंड 3ab², ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करना इसके ऊपर और इसको चेंज करना आपने किस फॉर्म में,
ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में ईजिली हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। नाउ ये कुछ क्वेश्चंस हैं फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, डू दीज ऑल्सो। थैंक यू सो मच।